आता हूँ। देखी ना जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा, चरना नल जोड़ ले। देखी ना अवगुण मेरे, चरना नल जोड़ ले। देखी ना अवगुण मेरे, मेरी आवाज बता दी। चरना नल जोड़ ले। देखी ना अवगुण मेरे, चरना नल जोड़ ले। देखी ना अवगुण मेरे।
हम अवगुण करे एक गुण नाही, अमृत सार बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै पूजे, प्रतारा क्यों प्रीत लगाई, एक बिकन पंथ गुर संगत, अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो दर नारी, एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई, जेता समुद्र सागर भरिया, तेते अवगुण दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, बिच मेरे पाहो दुख दे पत्थरे तारे, मेरे अवसर नाच सारे सचे पातशाह, करना के नाल जोड़ ले, मेरे अवसर नाच सारे सचे पातशाह, करना के नाल जोड़ ले।
ਸਰਨਾ ਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ ਸਰਨਾ ਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਗਾਹੀ ਸਮਾਂ ਬੜਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਪਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਜਸ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਦਰਗਾਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਧੁਰ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰੀ ਜਸ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਮਰਤਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣੈ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣੈ ਧਰ ਤਬਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣੈ ਦੀਪ ਲੋਕ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣੈ ਕੁਹ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਟੈਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
की प्राप्त होवेगा। तो महाराज कहते जिन्हां ने ध्यान ला के सुनिया और हिरदे च बसा लिया, सुन के मन लिया, वो की लै गए इस दर तो? राज ले गए सच खंड दा, राज ले गए सच खंड दा। राज ले गए सच खंड दा। राज ले गए सच खंड दा, जिना सुनिया ते सुन के है मनिया। राज ले गए सच खंड दा। कमीर चढ़ियो गढ़ उपर राज लियो बनासी। कहते सचखंड दा बनासी राज ले लिया। वो राज जिहड़ा कदे खत्म नहीं होंदा। आ दुनिया के राजे आपां देखदे ना, महाराज कहते झूठे ने, झूठे। ये राज जिहड़े मिले ने कुछ समय लिए मिले ने, ये बनासी राज नहीं है। किसी नूं मिलिया 2 साल लई, किसी नूं मिलिया 5 साल लई, किसी नूं 10 साल लई, किसी नूं 20 साल लई, किसी नूं 30 साल। इहदी कोई लिमिट आ? जिहड़ा संसार दा राज आ उहदी कोई लिमिट होया करदी। साथ संगत एक दिन उहने नाश हो जाना है। देख लो जिहड़ा कल मुख्यमंत्री सी, अज उहदी कौडी जिन्नी कीमत नहीं है। कोई कल दा प्रधानमंत्री सी, उहदी अज कौडी जिन्नी कीमत नहीं है। जिहड़ा मौजूदा है वो जमदियां चलाउंदा है। इसी तरह तुसीं सरकारी दरबारे दफ्तर चल जाओ, जिहड़ा कल क्लर्क सी शासन, अज वो अपने अहुदे तो हट गया, उन्होंने कोई नहीं सियाणदा। उन्होंने कोई लिमिट होया करती है। दूसरे पासे है अध्यात्मकवाद। आ गुरु नानक दा घर, रब दा घर, रहमतां बख्शिशां दा घर। गुरु परमेश्वर ने अपने प्यारे ते जे बख्शिशां कर दित्तियां साध संगत, वो कल भी सी, वो अज भी है, वो आने वाले समय विच बख्शिशां वरतदियां रहणगीआं। देख लो रब दे प्यारिआं दे अस्थानां ते निगाह मार के देख लो। बाबा निधान सिंह जी हजूर साहब वाले कल भी बख्शिशां सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दीआं। कहंदे खीसा मेरा हथ तेरा बाती चल,
कल भी सी, अज भी है, आने वाले समय विच भी वो बख्शिशां वरतदियां रहणगियां। साध संगत वो अविनाशी राज है, अविनाशी बख्शिशां ने वो कदे खत्म नहीं होणगियां। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगां जुगांतर खाही पाहे। ऐसियां वो अविनाशी बख्शिशां वो मिलदियां किवें ने? गल्लां नाल नहीं मिलदियां, वो गल्लां मार के नहीं मिलदियां। बख्शिशां वो गुरु महाराज गुरु महापुरखों दियां साध संगत सेवा करके उन्हां दे हुक्म विच रह के वो बख्शिशां मिलदियां। वो अविनाशी बख्शिशां जिहड़ियां अज दा मनुख बख्शिशां लैना जरूर चाहुंदा है कि मैं भी कोई रुतबा हासिल कर लवां अध्यात्मकवाद दे विच, मैं भी किसी तीसी ते जाके बैठ जावां, पर किवें गल्लां दे नाल मैनूं कुछ करना ना पवे। बहुत ऐसे ने दास दा बाह पैंदा रहिंदा है साध संगत, पर जिन्ना चिर गुरु महाराज के बचनों को सुन के मनांगे ना, उन्ना चिर वो विनाशी राज नहीं मिलना, वो विनाशी बख्शिशां नहीं मिलनियां। चाहे कोई वस्त्र पाई जाए, चाहे कोई जिद्दां दा मर्जी दिखावा करी जाए, ये बख्शिशां वस्त्रां जां दिखावियां नाल नहीं आउंदियां। ये गुरु नूं खुश करके मिलदियां ने। ते गुरु खुश किवें हुंदा? जदों उहदा असीं हुक्म मंनदे हां, उहदा वचन मंनदे हां। दुनियावी मिसाल लै लो, माता पिता किस बच्चे ते खुश होंदे ने? जिहड़ा माता पिता दा हुक्म मनदा, उहदे हुक्म विच रहिंदा, उहदे वचनां ते चलदा है। जिहड़ा बच्चा माता पिता दे वचनां ते नहीं चलदा, हुक्म नहीं मनदा, गल नहीं सुनदा, उहनूं बेदखल कर दिया करदे ने, कहंदे साडा नहीं कुछ भी लगदा। इसे तरह जिहड़ा गुरु दा हुक्म मन के चलदा है, गुरु दे वचन सुन के हिरदे च बसा के जिंदगी विच जींदा, गुरु उहदे ते रहमतां बख्शिशां करदा है। इसलिए महाराज कहंदे जे तूं चाहुंदा ना तेरे ते भी वो रब्बी रहमतां हो जाण, ते की कर? हुक्म तू मन ले मनावे, कृपा जे लैनी गुलामी। हुक्म तू मन ले मनावे, कृपा जे लैनी गुलामी।
की है हुक्म है धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नूं परमेश्वर करके मनना, गुरु करके जानना। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का अखर अखर निरंकार है। पढ़ते हैं ना, वाहू वाहू बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोई। महाराज कहते जिन्होंने वचन मान लिया वह बेड़ा पार हो गया। साध संगत धन गुरु रामदास जी महाराज दस बेनती कर रहा, जिन्होंने सुन के मन्या, जिन्होंने सुन के मन लिया साध संगत इत्थे तक कला बेड़ा ही नहीं पार हो जाता, वो गुरु का रूप बन जाते हैं। एडियां बख्शिशां गुरु महाराज कर देंगे। धन गुरु रामदास महाराज सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब तो साध संगत निगाह मार के देखो, पुत्र भी नहीं पर हुक्म कि नहीं मन्या, सेवक ने मन्या भाई लहणा जी ने। पुत्रां नूं नहीं सेवक नूं हुक्म बचन मनन वाले नूं गुरता गुरगद्दी की बख्शिश कर दी। अगे चल जाओ धन गुरु अंगद देव जी महाराज, पुत्रां नूं नहीं सेवक नूं गद्दी दी। गुरु अमरदास जी महाराज पुत्रां नूं नहीं सेवक नूं गद्दी दी, किसी रिश्ते नूं गद्दी नहीं दी। इस तरह हम गुरु रामदास सच्चे पातशाह सोढ़ी सुल्तान बैठे ने तख्त के उपर। तीन पुत्र ने, बड़ा प्रिथी चंद, दूजे नंबर से महादेव, तीसरे नंबर से श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह। हले गुरता गुरगद्दी नहीं मिली साध संगत। हुण बाणी विच एक बचन आउंदा, सतगुर नो सब को देखदा जेता सब संसार, डिठिया मुत ना होवी जिचर शब्द ना करे विचार। देखते सारे ही दर्शन गुरु ग्रंथ साहब के सारे करते हैं आपां, पर मुक्ति कदों मिलनी जो शब्द ही विचार करा। हूँ चाहे नमस्कार करी जाओ फल मिलूगा उसका, मुक्ति नहीं होगी साध संगत। दर्शन प्रिथी चंद भी रोज करता है, महादेव भी करता, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हले गुरता गुरगद्दी नहीं दर्शन करते ने। साध संगत आप जानते हाँ प्रिथी चंद जिहड़ा हर वेले गुरता गुरगद्दी ते निगाह रखता है, गुरता गुरगद्दी हथियाउण दे लई बड़ा कुछ कीता। आप सारे इतिहास तो वाकफ हाँ। ईर्खा मन विच रखदा, जबकि बाणी भी पढ़ता है, पर का बुरा ना राखो चीत तुमको दुख नहीं पाई भी, पर उत्ते अमल नहीं करता। एक होर वचन आउंदा, बिन कर्मा किछ पाईए नाही जे बहुत तेरा धाव। जो तुहाडे भागां दा तुहानूं मिलना मिलना, कोई खो नहीं सकता। तुसी किसी के भागां दा खोण की कोशिश ना करो। बाणी कहती बिन कर्मा किछ पाईए नाही जे बहुत तेरा धावे। प्रिथी चंद सुनता जरूर आ बाणी, पढ़ता भी है, पर अमल नहीं करता। अमल कौन करता? श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। साध संगत किथे तक ईर्खा करता है। गुरता गुरगद्दी हथियाउण दे लई साहिबजादे हरगोबिंद जी महाराज दे कितने हमले करवाए, सारे व्यर्थ चले गए। क्यों? जिसका साहिब डाढ़ा हो इसनों मारना साक्या कोई। साहिब डाढ़ा है, सिर ते हाथ है परमेश्वर दा, ते मार कौन सकदा उन्होंने? साध संगत बाणी पढ़दा है पर अमल नहीं करता। इसलिए कृपा किहदे ते होई? जिहड़ा बचन नूं मनदा। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ते बख्शिशां कर दित्तियां धन गुरु रामदास जी महाराज ने। साध संगत जिस वेले गुरता गुरगद्दी मिली महाराज नूं, कहंदे इहने उसे वक्त प्रिथी चंद ने कह दिता सी, बोल कबोल बोले धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह नूं गुरु अर्जन देव जी ताई कह दिता, कहंदे जिन्ना चिर मैं जिउंदा इहनूं टेके नहीं बैठण दवांगा। हालांकि बाणी पढ़दा बिन कर्मा किछ पाईए। महाराज कहंदे भाई तैनूं ओही मिलना जो तेरे भागां दा इहने बड़ा कुछ कीता। मराउण तक चला गया पुत्र हरगोबिंद जी नूं, पर महाराज कहंदे इहदे पल्ले कुछ नहीं पिया। गुरता गुरगद्दी तां एक पासे रह गई, इहनूं सिख दा खिताब भी नहीं मिलिया। इहनूं गुरु दा सिख नहीं कहंदे प्रिथी चंद। इसलिए महाराज कहंदे भाई भाणे विच रह के रजा विच रह के हुक्म मान के गुरु दा जिंदगी बतीत कर। देख वे गुरु तेरे ते बख्शिशां करदा, क्योंकि जे तू माड़ी सोच रखेगा ओ माड़ी सोच ना किसे लई भी सोची, मिलना तैनूं तेरे कर्मां दा। माड़ी सोच ना किसे लई सोची, मिलना तैनूं तेरे कर्मां दा।
बंदिया मिलना सिंह तेरे कर्मां दा 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 मारी भोजना किसे नहीं सोची किसे नहीं मेरा सिंह तेरे कर्मां दा मारी भोजना किसे नहीं सोची मेरा सिंह तेरे कर्मां दा बड़ा कुछ कीता होया कि कुछ भी नहीं। बड़े साध संगत जी अपने मन के नाल गुरता गुरगद्दी हथियाउण दे लई तरीके ढंग वरते पर परमेश्वर ने उहदा एक भी जिहड़ा ढंग तरीका वो चलण नहीं दिता। गुरु दे सिख दा भी खिताब नहीं मिलिया। इसलिए महाराज कहिंदे ये बख्शिशां उन्हां ते होईयां जिन्हां ने बचन मन्निया। किसी समय महादेव जी नूं इहने कह दिता सी कहंदा मेरे नाल रल जा। जिहड़ा गुरु घर जिहड़ी माया आउंदी ना जो गुरु घर दे विच आउंदा लक्ष्मी आउंदी है जो भी धन दौलत आउंदी आपां रल के वरतांगे रल के खावांगे। गुरता गुरगद्दी मेरे हाथ आ जानी है मैं बादशाह नूं सिफारिश पाई हुई है। साथ संग महादेव जी कहण लगे पिरथी चंद भरा अपने नूं बड़े नूं कहंदे भराता जी बादशाह गद्दी तां गुरता गुरगद्दी तां लैके दे सकदा तुहानूं पर जिहड़ियां बख्शिशां धन गुरु रामदास जी महाराज पिता गुरु रामदास जी महाराज गुरु अर्जन देव जी महाराज ते कर गए वो रूहानी बख्शिशां किथों लैके आउण। गुरु अर्जन देव जी महाराज इत्थे अमृतसर साहिब की धरती ते बैठ के देशां प्रदेशां विदेशां दे विच जिहड़ियां संगतां महाराज नूं आराधदियां ने चरनां दा ध्यान धर के अरदासां करदियां ने पिरथी चंद जी वो किवें पूरीआं करोगे। अज कपड़े पा के संत तां सारे बन जांदे साध संगत जी पर वो जिहड़ियां रहमतां बख्शिशां गुरु महाराज वालों मिलदियां ने वो किथों लैके आउणीआं भावनावां किवें किसे दीयां किवें पूरीआं करांगे। खैर समझाया महादेव ने पिरथी चंद नूं कि पिता गुरु रामदास जी महाराज दा इतनियां बख्शिशां करके गुरु अर्जन देव ते कहंदे जांदे समय वो सारी संगत नूं कह के गए सी सारियां दे विच अज तो 4 गुरुआं दा स्वरूप श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं जानन। बख्शिशां रहमतां सारियां गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं दे गईयां। पिरथी चंद निर्वैर दे नाल वैर ना कर खैर नहीं मन्निया साध संग उहदे पल्ले विच भी कुछ नहीं पिया। अज लोग याद करते ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं ते मूहों मंगियां मुरादां पाउण। पिरथी चंद नूं कोई याद नहीं करता जे कोई याद करता तां उहनूं लानतां पा के याद करता। सो साध संगत दास दे कहण तो भाव अर्जन सतगुरु अर्जन देव जी महाराज ने बचन मन्निया गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे बचना हुक्मां दे विच रह के बख्शिशां प्राप्त कीतियां। जिहड़ा हुक्म ते चलदा बचन मनदा किंतु परंतु नहीं करता वो इस दर ते उतों सारियां बख्शिशां लैके जांदा है। क्योंकि गुरु का जिहड़ा हुक्म आउंदा ना हुक्म वो सब नूं साझा है। उपदेश 4 वर्ना को साझा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का किसी समय दरबार सजिया होया है। बेअंत संगतां दूरों नेड़ों चल के अपने जीवन का लाहा प्राप्त करदियां ने। जिवें असीं तुसीं आए हैं परिवार वालियां दे सदे पत्तर ते आ दरगाही समय का आनंद माण रहे हाँ। जिन्हें ये समा
श्रद्धा भावना के नाल चित्त की बिरती एकाग्रता करके साध संगत ये समा ला लिया, ये दरगाही समा है, वह लेखे में लग जाएगा। महाराज बैठे ने, दूरों नेरों संगत आ रही ने, लाहा प्राप्त कर रही ने। एक प्रेमी ने महाराज के चरणों के बेनती की, कहन लगा महाराज कृपा करके दसना करो कि आप जी उपदेश सबनों इको जिहे बख्शदे हो। ये तो है नहीं भी कल्ले तो कल्ले नूं आप जी कोई उपदेश बख्शदे हो, जिहड़ा उपदेश आप जी बख्शदे हो साझा बख्शदे हो संगत दे विच। पर ऐसा क्यों है, एक वो ने जिन्हां ने इको ही दफा सुनिया बचन आप जी का, उन्हां दी अवस्था बड़ी उच्ची हो गई, चढ़ गई अवस्था, उच्ची अवस्था के मालक बन गए। तो महाराज कई ऐसे भी ने जिन्हां ते आप दे बचनों का असर ही नहीं होता, ऐसा क्यों है, कृपा करके दसना करो। साध संगत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा अच्छा भाई, कहते यूँ करो 3 बाल्टियां जल दियां लैके आओ, पानी दियां लैके आओ। 3 बाल्टियां आ गई। महाराज कहते एक दे विच मिट्टी का डला, भेला कह लो, डला कह लो, कहते वो एक दे विच पा दो, पा दिता हुक्म मन के। दूजे विच कहते पत्थर पा दो, पत्थर का टुकड़ा पा दिता गया। तीजे विच महाराज कहते इहदे विच पतासे पा दो, कहते पतासे पा के कहते उन्हें एक पासे रख दो, एक पासे रख दिता गया। कहते महाराज फिर संगत होर जदों आई गई तो बचन करी गए। काफ़ी समा बीत गया, साध संगत गर्मियां के दिन ने, समा बहुत हो गया। वो प्रेमी कहन लगा भी महाराज ने मैं कोई प्रश्न किया सी तो उसका उत्तर नहीं दिता, महाराज होर संगत दे नाल ही बचन विलास करी जाते हैं। कहते फिर अगे हो के फिर महाराज नूं बेनती की, कहन लगा महाराज एक बेनती की सी कि इउं दसो भी इको जिहा असर क्यों नहीं हुंदा, जबकि सारे बैठते संगत विच इको जी आवाज़ सुनते हैं, इको जिहा हुक्म तुहाडा हुंदा सारिआं नूं, ते आप जी होर ही संगत दे नाल बचन करन लग पए। महाराज कृपा करो। महाराज कहते हाँ याद आ गया, इउं करो, कहते जाओ वो जिहड़ियां बाल्टियां रखियां सी उहनूं एक पासे देखो जाके। देखते ने कहते हकी हुक्म महाराज, कहते जिहड़ा मिट्टी का डला पाया सी वो डला कढ के लिआओ। जद वो देखदा साध संगत वो कहन लगा महाराज मिट्टी का डला इत्थे कित्थे है, इत्थे तां गारा बन गया, ये तां घुल गया इहदे विच। महाराज कहते घुल गया, पाया तो डला सी, कहते महाराज पाया तो डला ही सी पर पानी में घुल गया, गार बन गया। महाराज कहते बाहर कढ़ दे, बाहर कढ़ दी गार। थोड़ा समा हवा लगी नाल ही फिर कहने लगे महाराज कहते हुण की बनिया, कहते महाराज फिर ये मिट्टी का डला ही बन गया, महाराज उहो जिहा बन गया जिहो जिहा ये पाया सी। महाराज कहते तेरे सवाल का जवाब है। संगत विच सारी संगत आउंदी बैठते ने, आके संगी कुछ इहो जिहे हुंदे ने जिहड़े संगत विच बैठते ने, जिन्ना चिर बैठते ने असर होया करता है, थोड़ा असर साध संगत घर जांदियां तक भी रहिंदा है। पर जदों वो जिहो जी संगत विचों आए हुंदे ने, समा हौली हौली पई जांदा, वो उहो जिहा फिर बन जाया करदे ने, उहो जिहा रूप हो जाया करदे ने। महाराज कहते जिवें मिट्टी का डला कुछ समा पानी विच रहण करके गार बन गया, फिर हवा लगती है, समा बीतिया ये डले का डला बन गया। इस तरह कई लोग आउंदे ने संगत हुंदे मनमुख ने, जिन्ना चिर बहिंदे ने असर हुंदा है, घर तक जांदियां दा असर हुंदा, जिहो जी फिर मुड़ के संगत विचों आउंदे ने उहो जिहा असर कबूल लैंदे ने, फिर उन्हां दा मन उहो जिहा बन जांदा। महाराज कहंदे ओ मन मुखां दी संगत करके बंदा मन मुख बन जांदा, मन मुखां दी संगत करके बंदा मन मुख बन जांदा। महाराज कहते वो फिर जिन्हां मनमुखां दे विचों आया हुंदा है उहो जी बिरती हुंदी, उन्हां विच जाके फिर उहो जिहा हो जाया करदा, उन्हां ते कोई असर नहीं होया करदा। हुण महाराज कहते दूजा जिहड़ा पत्थर पाया सी उस बाल्टी नूं देखो, ते ओह देखदा महाराज कहते की है, कहते महाराज वो जिहो जिहा पत्थर पाया उहो जिहा है। महाराज कहते कुछ होया भी, कहता नहीं महाराज कुछ बाहर कढ। बाहर कढ़िया, गर्मी बड़ी सी, हवा फिरी, बाहर कढ़ते सारे ही साध संगत फिर सुक जाता, वो जिवें दा सी उवें दा हो जाता। कहते महाराज ये तो उदां दा ही आ,
महाराज कहते कुछ ऐसे भी होंगे ने संगत विच जिन्ना समा बैठते ने आपां देखते कईयां दे तां अथरू भी जान लग पैंदे ने, बैराग विच आ जांदे ने, बैराग विच आ जांदे ने। जिन्ना सिर बैठे बैठे बस आ गुरु घर दा दरवाजा बाहर पैर पट्टिया नहीं, साध संगत उहो जी मत फेर हो जाती है। पत्थर दी न्याई महाराज कहते कुछ ऐसे भी होंगे ने वो पत्थर वर्गे ने, कदे नहीं भिजदे कदे नहीं भिजदे, पत्थर वर्गे ने कदे नहीं भिजदे कदे नहीं महाराज कहते एक ऐसे भी बैठे होंगे ने उन्होंने कोई फिर असर होया ही नहीं करता। महाराज कहते तीजी बाल्टी देख, तीजी बाल्टी बन जाता। महाराज कहते ये हथ पा के पतासे कढ़ ला जेडे पाए सी। कहते तो हथ मारदा साध संगत पतासे उत्ते कित्थे आ, वो तां घुल जाते हैं खुर जाते हैं, पानी का रूप बन जाते हैं। हथ मारदा महाराज कहते पतासे कढ़, कहता महाराज पतासे इत्थे कित्थे, कहते पाए तो पतासे सी भाई, तो महाराज पाए तो पतासे सी पर ये पतासे पानी विच घुल गए ने, पानी का रूप हो गए। महाराज कहते तेरे सवाल का जवाब है एक वो ने संगत विच आउंदे, तो पुछदा ना इक्को जिहा असर क्यों नहीं हुंदा, आ दो दा तैनूं दस दिता है। तीसरे वो ने गुरमुखा जिहड़े आउंदे ने गुरु दे घर, गुरु दे दर, जिहड़े बाणी नूं ध्यान नाल सुणदे। आपां कहंदे ने जी असीं इन्नी बाणी पढ़ लई, असीं इन्ने पाठ कर लए, मुबारक है, पढ़ने चाहिए ने, करना चाहिए है, समा बिरथा नहीं जान देना चाहिए। पर बाणी कहती की है, बाणी सानू की उपदेश बख्शती है, ਉਹਦੀ भी नाल दी नाल विचार करनी है। कई सज्जन ऐसे महाराज कहते जो आए संगत दे विच वो एक दफा कई दफा आउंदे ने इक्को ही वार, वो प्रेम दे नाल सुनते हैं महाराज दे वचन, प्रेम दे नाल जदों सुन के उन्होंने अपने हिरदे विच बिठाउंदे ने, हिरदे विच बिठा के घर ले जाके उन्होंने अपनी जिंदगी विच लैके आउंदे ने। वो जिहड़े फिर वचन सुन के मनदे ने, महाराज कहंदे वो फिर मेरा रूप हो जाते। साध संगत महाराज ने कहा ना खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हाँ करो निवास। खालसा केड़ा जिहड़ा गुरु महाराज दे वचनां ते चलदा है, गोड़ मड़ी मट भूल ना माने। महाराज ने कहा ना, कहते महाराज कहन लगे प्यारिया देखो जिन्हां ने प्रेम दे नाल श्रद्धा दे नाल सुनिया, सुन के मन्निया, मन के जीवन विच लैके आए, वो की बन गए, वो मेरा ही रूप बन गए। सुन के है मन्निया जनाने मेरा ही रूप बन गए, सुन के है मन्निया जनाने। मेरा ही रूप बन गए,
सुन के है मन्या जनाने, उनके है मन्या जनाने, उनके है मन्या जनाने। वो सुन के है मन्या जनाने, उनके है मन्या जनाने, उनके है मन्या जनाने, उनके है मन्या जनाने। हाँ भाई उनके है मन्या जनाने, उनके है मन्या जनाने। मेरा ही रूप बन गए उनके है मन्या जनाने, मेरा ही रूप बन गए उनके है मन्या जनाने। महाराज कहते ओ फिर पतासियां दी न्याई नहीं हुंदे, सुन के मनन विच लैके आउंदे ने ते जेड़े मन लैंदे ने महाराज कहंदे ओ मेरा ही रूप बन जांदे। बने सी ना भरे दरबार दे विच महाराज ने नंगी तलवार कट के जदों सिरां दी मंग कीती सी ना, कहंदे मैनूं इक सिर चाहीदा, दे लो किड्डा कट सी। सुन के मन्निया, मनन वाला जदों अगे आया 1 2 3 4 5 ते महाराज ने जदों वो बचन मनन वाले अगे आए अपना सिर गुरु नूं अर्पण कर दिता ते महाराज कहंदे अज तो ये मेरा रूप बन गया, ये खालसा बन गया। क्यों बनया? उन्होंने गुरु का वचन मन्निया। वचन तो आपां भी मनते हैं, आपां जिहड़े सौखे सौखे आ ना वो मानते हैं भी आ ठीक आ साडे लई, जिहड़ा औखा वचन असीं कहने साडे लई नहीं, ये किसी होर लई आ, सो तेरे दे कहण वांग। साध संगत जिन्हां ने वचन कमा लिया, वचन मन लिया, वो गुरु का रूप हो गए, गुरु दियां रहमतां बख्शिशां दे वो पात्र बन गए। साध संगत वचन है कमाउणा बड़ा औखा, जिन्ना इथों कह दिता भी वचन मनो, मन के पद भी मिल जाऊ, उन्ना कमाउणा औखा है। हुण मन दियां गल्लां कौन छड्डे, मन का सुभाव कौन छड्डे, ये चंगा लगदा जबकि है चंगा नहीं। गुरु का वचन चंगा सानू आत्मक सुख प्रदान करदा, पर ये औखा लगदा है। महाराज कहंदे जिन्हां ने गुरु का वचन मन लिया उन्हां दे बेड़े पार हो गए, गुरु दियां खुशियां दे पात्र बन गए। आपां समागम कराउंदे हैं, परिवार वाले शुकराना कर रहे ने, महाराज के चरणों च बेनतियां भी कर रहे हैं भी परिवार ते दी चढ़दी कला दे लई महाराज इन्हां दे उद्यम सदका आपां आए हाँ। साध संगत गुरु महाराज कृपा कर दे, कहते जिन्हों ने वचन मन ले, जो वचन आउंदा उहनूं कमा लिया, आपे खुशियां आपे खेड़ा है। साध संगत गुरु, क्योंकि गुरु कदे भी पिठ नहीं लगन दिंदा बंदे दी। जिहड़ा गुरु के मार्ग से चलदा ना, गुरु नूं अंग संग जान के गुरु के चरणों के अरदास बेनती करके तुरदा कारज करदा, गुरु उहदी पिठ नहीं लगन दिया करदा। बस होवे शरधा, होवे साडी भावना कि गुरु मेरे संग सदा है नाल सुनदा है, गुरु मेरा मेरी अरदास सुनदा है। साध संगत दास बेनती कर रहा, जिन्हां ने सुनिया सुन के मन लिया वो गुरु दियां खुशियां दे पात्र बन गए। ऐसा एक प्रेमी जिहड़ा साध संग महाराज ने जदों वचन किया उस वचन नूं कमाया ते कमा के गुरु दियां खुशियां दा पात्र बनया। कौन सी? साध संगत ये सी शीहां उपर, शीहां करके गुरु घर दा एक सिख है। अज गोविंदवाल साहब की धरती नूं महाराज धन गुरु अंगद देव जी महाराज जा रहे हैं। क्यों जा रहे ने? इत्थे किसी समय बाबा अमरदास जी हाले गुरता गुरगद्दी नहीं सी मिली, भेजिया सी महाराज ने गोविंदवाल साहब की धरती ते जाके उत्थे
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ। ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਨ ਬਣ ਕੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਬਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੇਕ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁਰਖਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰੇ ਬੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੇਵਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਰਿਆਂ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਏ ਮਨ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਂ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਂ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਬੇਵਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ।
तुरे जाते ने महाराज कुछ सेवक नाल ने। रस्ते विच जाते जाते शीहा मिलिया साध संगत, भाई शीहा। शीहा तुरिया आउंदा है, 2-3 बकरे इहदे कोल फड़े हुए ने, रस्सियां गलां विच रस्से पाए हुए ने। वो रस्सियां जिहड़ियां ने फड़ियां ने हत्थां दे विच, खिच्ची आउंदा है। जदों आउंदा अगे धन गुरु अंगद देव जी महाराज के दर्शन हुंदे ने, नमस्कार करता है। महाराज कहण लगे शीहा भाई किधर? कहण लगा महाराज घरे साडे अज फंक्शन है, प्रोग्राम है, भाईचारा इकत्तर होया है। कहंदे भाईचारा तो ठीक है, आ बकरे फड़े ने भाई। कहंदा महाराज वो भाईचारे नूं अज असीं रोटी खिलाउणी आ, साडे पहिलां तो काम चलिया आउंदा है। भाईचारा सद के आ कहंदे बकरे, बकरे किस वास्ते? कहंदे महाराज इन्हां नूं वट के इन्हां दी सब्जी बना के रिश्तेदारां नूं खिलाउणी, भाईचारे नूं खिलाउणी आ, साडे रिवाज तुरिया आउंदा। महाराज कहंदे शीहा गुरु घर भी आउंदा, गुरमत नूं धारण करन दी बजाए मनमत करी जाना। आपां भी इउं करदे ना, कल्ला शीहा नहीं ना करदा। असीं भी बहुत आत ऐसी आपां देखदे हां, ब्याहां शादियां ते भी जांदे हां, मार महाराज दे प्रकाश करा के किते घर दे विच जदों इउं बैठे हुंदे ने जिवें साध संगत बहुत उच्ची पदवी दे सिख हुंदे ने। बस जदों महाराज घरों चले जांदे ने उत्थे फिर शोर शराबा, शराब कबाब सब कुछ चलन लग पैंदा। इउं लगदा हुंदा जिवें महाराज दे जाण दी उड़ीक ही करदे हुंदे भी किहड़ी घड़ी महाराज जाण तां असीं अपने मन दीआं आईआं करीए। साडा भी इहो हाल है, शीहे वर्गा विचार करन दी लोड़ है। गुरु महाराज ने इन्हां चीज़ां तो सानू वर्जित कीता होया है। कहंदे शीहा मनमत भी करी जाना, गुरु शरण विच भी आई जाना, ये शोभ निकनी है। कहंदा महाराज की करिए, साडा तां पहिलां तो इउं बड़ियां दीआं रीतां चलियां आउंदियां ने। आपां भी कहंदे ना कई तां बेचारे इउं फसे रहिंदे ने जी साडे बड्डियां वडेरियां दे इह चलदा आउंदा काम। बड़े वडेरियां नूं साध संगत जिहड़े काम सानू नरकां विच लै के जांदे ने ओह काम छड्ड दो। बड़े वडेरे किहड़े ने साध संगत? धन गुरु ग्रंथ साहिब तो बड़ा होर किहड़ा आ गया साध संगत? असीं एक जगह कीर्तन कीता, गुरु घर दे लंगरां दे इमारत बनाउणी सी, सारे इकट्ठे होए, गुरु महाराज के चरणों च अरदास बेनती की। जदों नींह पत्थर 5 प्यारिਆਂ तो रखाउण लगे, वो एक बंदा खड़ के ठेकेदार वो अपना करी जावे कुछ। मैं उन्होंने पूछया भी आ की? कहंदे जी ये भी अरदास करदा। मैं कहा जिहड़ी हुण अंदर कर लई आ उदू उपर दी करू। ये 5 प्यारे साहबान ने नींह पत्थर रखना, ये एक ख्वाजे नूं जी ख्वाजे दी करदा। वो ख्वाजा मैं कहा किहड़ा भाई? गुरु ग्रंथ साहिब सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। हुण सानू भरोसा नहीं, हुण ख्वाजे वाली मैं कहा चंगी रहूगी जां ओहदे कोल करा लेंदे भाई। मनमत करनों नहीं हटदे साध संगत जी, गुरमत गुरु साहब मनमत तो सानू रोकदे ने। कहंदे शीहा भाई ये तेरे बड़ियां वडेरे? कहंदे हाँ महाराज, इन्हां नूं वढ के सब्जी बना के भाईचारे नूं खिलाउणी आ, इउं चलिया आउंदा। कहंदे महाराज कहण लगे शीहा कदी विचार कीती इहदा लेखा कौन देवेगा? हुण असीं सोचदे रहने कई कर्म करन लगे भी इहदा लेखा जोखा भी होना। आम हुण प्रचार चल पिया भी किहड़ा धर्म राजा ते किहड़ा रब, किहड़ा लेखा लैण वाला। जिवें मर्जी मन दी मर्जी है, जिंदगी तुहाडी उहनूं जियो। नहीं भाई जिंदगी तुहाडी नहीं है, जिंदगी परमेश्वर की बख्शी हुई है। जदों गुरु घर विच आउंदे बाणी पढ़दे बाणी सुनदे फिर सोझी आउंदी है कि साध संगत जी किहड़े कर्म करने ने किहड़े नहीं करने। कहंदे शीहा इहदा लेखा होना। कहण लगा महाराज लेखा मैं कदी सोचिया ही नहीं। महाराज कहंदे इउं दस बीजे विख मंगे अमृत वेखो इहो न्याओ। बीज कोई बीजे किकरां दे, बीज कोई बीजे जहर दे, आस रखे मैनू अमृत मिल जावे। कहंदे शीहा ऐसा हो सकदा? कहंदा महाराज ऐसा तो हो नहीं सकता। कहंदे फिर जिहा बीजूंगा ओहो जिहा खाऊंगा, आपे बीज आपे ही खाओ। महाराज कहंदे आपे बीज के आपे ही खाने पैने, तू बीज बीजी सोच सोच के, बीज के आपे ही खाने पैने, बीज बीजी सोच सोच के आपे बीज
सोच सोच के संध्या बीज बीज सोच सोच के आपे बीज के आपे ही खाने पड़े आपे ही खाने पड़े बीज बीज सोच सोच के आपे बीज के आपे ही खाने पड़े बीज बीज सोच सोच के आपे बीज पे आपे ही खाने पड़े आपे बीज पे आपे ही खाने पड़े आपे बीज पे आपे ही खाने पड़े महाराज कहते सोच के बीज बीजी देखते नहीं आप कईयां दे राहां 'च कंडे विछाउंदे ने कई माड़े कर्म करते हैं पर ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ कुछ समय ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਬਣਨਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਲ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਲਾ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਹਾਂ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਾ 68 ਤੀਰ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਕ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਦੋਛੇ ਛਕਾਉਣੇ ਖਿਲਾਉਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਲੇਖਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਪਾਪ ਤੈਂ ਕਰਨਾ ਲੇਖਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਫਸਣਾ ਤੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖ ਸਹੀ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹੀ ਬੋਲਦੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਕੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਬੰਸਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਪਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਆ ਆਇਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ੀਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਸ ਲਕੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਹਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ तेरी जान ने देखा तेरा तेरी जान ने देखा तेरा
तेरे मार के खाना प्यारिया तेरी जान ने लेका देना तेरी जान ने वो तेरे मार के खाना प्यारिया मार के खाना प्यारिया ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਬਦੋਛੇ ਖਿਲਾਉਣੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਗਿਆ ਹੋ ਚੱਲੀ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਛੱਡ ਤੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਹਦੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਈ ਗਏ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਈ ਗਏ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਐਨ ਥੱਲੇ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨਾ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰੰਗ ਦੇਹੋ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹਿਸ ਵਸਈਆ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਲਓ ਬੱਕਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁੰਡਨ ਕਰਨਾ ਮੁੰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਉਂ ਕਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਤੁਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਗ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਰਕਾਂ ਕੁਤਾਰਕਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਨੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ
तेरे दर से आया मुझे, हमारे करने वाले तेरे दर से आया मुझे। हाँ जी करते आया मुझे, तेरे दर से आया मुझे, करते आया मुझे, तेरे दर से आया मुझे। करते आया मुझे, तेरे दर से आया मुझे, करते आया मुझे, तेरे दर से आया मुझे। हमारे करना वाले तेरे दर से आया, हमारे पाना वाले तेरे दर से आया मुझे। भागा सत्संग ना लभे बिन संगत मैल भरीजे, कर्मां तो बगैर नींह ते बैठ। तो महाराज ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਸਭ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜੂ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਕਿਸੇ ਬਦੋਸ਼ੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਧੂਲਾ। ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਕਰੇ ਬੁੱਕਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ 36 ਪਦਾਰਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਖਾਓ ਜਿਤ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਬਾਬਾ ਸੇ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਆਈ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਣ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਨ ਨੇ ਗੁੰਦਨ ਕਰੋ, ਗੁੰਦਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੋ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਬਣਾਈ, ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਭੰਨ ਗਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋਈ ਤਾਕੀਆਂ ਦੇ ਭੰਨ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਟਾਟੀ ਤੋੜ ਜਾਵੇ, ਸਾਥ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊ ਕਿ ਰੋਸ ਹੋਊ? ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮਨਾ ਲਏ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਸੁੰਦਰ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮੁੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਗੁੰਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁੰਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਗੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਰਦੇ ਕਟਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੂ। ਸੋਹਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ, ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚਿਹਰਾ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਮਰ ਢਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਹੱਪਣ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ, ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। सब जग तेरा होगा भाई, सब जग तेरा होगा, सब जग तेरा होगा, सब जग तेरा होगा। मेरा होए रहे, मेरा होए रहे, मेरा होए रहे, मेरा होए रहे। महाराज कहते भाई जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए, सारा संसार तेरा हो जाए। अज सतपुरुष आप देखते ना नाम जपण वाले, उन्होंने कहना नहीं पैंदा किसी ने, बस सारे कारज
आप ही होई जाते हैं, संसार उन्होंने पिछे पिछे तुरया फिरदा। क्यों? साध संगत वो गुरु नूं भा गए, गुरु नूं चंगे लग गए ने। ते गुरु नूं चंगे क्यों लगे हो? क्योंकि उन्होंने गुरु का वचन मन्निया है। असीं क्यों नहीं चंगे लगते? साडे मगल कोई तुरदा नहीं, क्योंकि असीं गुरु के वचन नहीं मनते। शासन इसलिए जो महाराज ने उपदेश बख्शिया, कहते भाई ये केस भी कतल नहीं कराने, इन्हों मुंडना नहीं, इन्हों का गुंदन करना है। साध संगत वो सारिया ने फिर महाराज के चरणों में सीस नवाया, सिर नवाता कि महाराज जिमें आप जी की मौज है, असीं आप जी दी खुशियां लैनियां। साध संगत खुशियां वो दास पहला भी बेनती कर चुका, ये खुशियां गल्लां बातां नाल नहीं मिलनियां, ये खुशियां मिलदियां ने गुरु का हुक्म मन के, गुरु का वचन मन के। ते साध संगत महाराज कहते जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु का वचन मन के शुभ कार्य शुरू कर दिते, नाम जपना शुरू कर दिता, भजन बंदगी करनी शुरू कर दी, महाराज कहते सारा कुछ उन्होंने सही हो जाता। ਆਪਾਂ रोज पढ़ते ना, जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे, उन्होंने सारे कारज गुरु सवार दिया करता, जिहड़ा गुरु के बचनों से चलता है। कोई राम कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई वाहिगुरु कहे, अपने मत के अनुसार, आप दे धर्म के अनुसार, आप दे गुरु को जिन्होंने दीक्षा लई हुई है वो अनुसार वो जपे जपे जप के ईर्खा ना करे किसी दिन। बन भी चाहता नाम सुन मान रहसी है, ना सुन के चाहे कोई राम भी कहता, साध संगत हृदय विच गिलानी नहीं होनी चाहिए। राम जो रमया होया परमेश्वर उन्होंने राम कहते हैं। साध संगत राम कहता है, मन राम का नाम सुन के मन प्रसन्न हो जाना चाहिए है कि ये परमेश्वर का नाम ले रहा है। कोई राम कहे अपने मत के अनुसार, लोड़ है नाम जप के किसी ना ईर्खा ना करे, द्वेष ना करे, वाद विवाद ना करे, चाहे कोई राम चाहे कोई अल्लाह कहता वो साध संगत अर्थ नूं समझ, जो भावना है इंसानियत की उन्होंने समझ के आपके कार्य जिहड़े वो आपके गुरु की मत के अनुसार करे। तो भाई उन्होंने सारिया ने महाराज के चरणों में नमस्कार की ते प्रण किया कि अज तो ये जिहड़ा मास शराब का है दौर ये खत्म कर दिता जाएगा, और ये जिहड़ा मुंडन करते हैं तो ये अज तो बाद मुंडन नहीं गुंदन होगा। गोइंदवाल साहब की धरती पर प्रथा चलती है। साध संगत उत्थे फिर सारिया ने बच्चों के गुंदन किए, किसी ने भी फिर केस नहीं सी कटाए। क्यों? क्योंकि वो फिर गुरु दी खुशियां लैनियां चाहते सी, उन्होंने लईयां भी। भाई शीहा भी गुरु का फिर साध संगत सिख बनया सी, वचन मनन लग पिया ते महाराज दी रहमतां दा पात्र बन गया। असीं भी आए हाँ, वचन गुरु दे ने जो मुखारबंद तो मुख तो कढ़ाउंदा है, नाल दी नाल साध संगत ये निकलते हैं, जिवें उहनूं भाउंदा है उवें बुलाउंदा है। ये उहदे वचन ने जान के हिरदे च वसायो, जिहड़े नहीं चंगे लगे वो दास की झोली विच पा दिओ। क्योंकि महाराज कहंदे जे तै खुशियां गुरा दियां लैणियां वचन गुरां ले, जे तै खुशियां गुरा दियां लैणियां वचन गुरां दा मन ले। प्यारे जी वचन गुरां दा मन ले, प्यारे जी वचन गुरां दा मन ले। Yeah.
खुशियां रातियां लैनियां बचन गुरां दा मन ले खुशियां रातियां बचन गुरां दा मन ले कमावे संतन का सो गुर प्रसादी करे। साध संगत जिन्हों ने बचन कमा ले महाराज कहते डुबिया कोई नहीं, वो सारे तर गए तर। अज भी असी गुरु का बचन कमावांगे, गुरु के बचनों को मनांगे, जीवन में लैके आवांगे, असी भी तरांगे तरांगे। शासन डुबांगे नहीं। मत कोई सोचे कोई पता नहीं की हो जाना, जे अमृत छक लिया आ करना पऊ ओ करना पऊ। साध संगत तू आ गुरु की शरण विच आ, सारे कारज गुरु तेरे आप ही रास कर देवेगा। विपतावां तां जिंदगी विच थोड़ा बहुता तां वध घट होंदी रहिंदी जिंदगी है, शरीर है, सुख दुख सुख दोएदार कपरे पहरे जाए मनुख, ये भी ये नाल ही आ। पर जिहड़ी आत्मक अवस्था वो इक्को सार होनी चाहिए, वो फर्क नहीं पैना चाहिए। गुरु आप ही बख्शिशां कर दिया करता है। सो भाई गुरु का दर ना छड्डिए, गुरु का लड़ ना छड्डिए। महाराज सब बख्शिशां दे रहमतां दे दाते ने। घातां तेरा सब किश है, जिस देहे सो पावे। आ गल जरूर चेते रखनी सदा, सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे। अपने हिरदे दे विच ओहदी सिफत सलाह, वो परमेश्वर का नाम जरूर आपां। जे कोई राम भी कहता दास अक्सर अपनी इस स्टेज तो जथा कहता हुंदा भाई, जे कोई राम राम भी कहता श्रद्धा भावना दे नाल जरूर वो 2 टाइम राम दे नाम की हाजरी लवावे। जे कोई अल्लाह अल्लाह कहता वो भी अपने मत के अनुसार हाजरी लवावे। आपां गुरमत गुरु के सिख हाँ, सानू महाराज ने बख्शिशां कीतियां ने बाणी दियां। असीं जरूर 2 टाइम जिहड़ा है वो समा कट के फिर महाराज का शुकराना करिए, जिन्हें सानू बख्शिशां दातां दित्तियां होईयां ने। सो भाई महाराज कृपा करन। परिवार वालियां दा धन्नवाद है जिन्होंने समा बख्शिश किया। ये दरगाही समा महापुरुष कहते हैं, कहते जिहड़ा समा लग गया 1 घंटा कीर्तन किया, ये कुछ सकेंड भी जी साडी बेनती टिक गई ना, वो भी साडा लेखे विच पै जावेगा। गुरु महाराज जरूर कृपा करते हैं। दास धन्नवाद करता है गुरजीत सिंह उन्हों का, जिन्होंने उन्होंने सदे पत्तर से इत्थे असीं आए हाँ। बहुत बहुत धन्नवाद समूचिया संगतां दा, जिन्होंने बैठ के प्रेम ते श्रद्धा दे नाल महाराज का जस श्रवण किया। और गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जिन्हों की कृपा दे नाल इत्थे बैठ के बोलिया जा सकता है, उन्होंने का कोटान कोट धन्नवाद असीं सदा ही करते रहिए। तां भी थोड़ा है साथ। सो आओ इतनियां क बेनतियां प्रवान करियो। बाणी दियां पंक्तियां दा जाप कराउंदियां उच्चारण करदियां एक नहीं बेअंत भुल्लां हो जांदियां ने। कीर्तन करदे एक नहीं बेअंत भुल्लां होईयां होणगीआं। अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना। गुरु महाराज बख्शण हारे ने, गुरु की प्यारी साध संगत बख्शण हारी बख्श लवे। आओ साध संगत जिथों आपां शुरू कीता सी एक धारना फिर आपां पढ़ के समाप्ति करिए। चरना नाल जोड़ ले देखी ना अवसर तेरे, चरना नाल जोड़ ले देखी ना अवसर तेरे। देखी ना अवगण मेरे, देखी ना अवगण मेरे, देखी ना अवगण मेरे, देखी ना अवगण मेरे।
करना नल जोड़ है देखी ना उगन करना नल जोड़ है देखी ना उगन मेरे महाराज कृपा करके सत्य रहमतां बरसाउणियां। आओ हुण आनंद साहब का पाठ जिहड़ी रचना धारणा कीर्तन विच नहीं बोल सकी वो आनंद साहब विच बोल के अपनी हाज़री लगवाओ। संसार के कामां नूं घर के कामां नूं पिठ दे के गुरु की शरण विच आए हाँ, जे इत्थे आके नाम ना जपिया भजन न कीता ये रचना की सफलता नहीं होगी। आओ आनंद साहब विच बोल के